भैया बैग आ जाओ। भैया पीछे आओ, भैया पीछे भैया। और आशीर्वाद का प्रतीक। कहते हैं अतिथि भगवान का रूप होता है, इसीलिए आज हम सब इस प्रथा को आगे है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। ये सुनहरी शाम और ये जाती हुई सूरज की धूप कितना खूबसूरत लगता है। प्रकृति का ये अनमोल रूप, ये हवा की हसीन अदाएं कितनी जचती है, ये वादियों पे फिजाएं। कुदरत का नजारा मन मोह लेता है, राह चलते मुसाफिर के कदम निहारने के लिए रोक लेता है। A very good evening to one and all. Every great event becomes truly memorable when it is graced by a personality who inspires courage, discipline and dedication. We feel highly privileged to welcome our chief guest of the evening, an epitome of integrity and service to the nation. Sir, your of leadership and your commitment to the welfare and safety of society truly motivates our young minds to responsible citizens of tomorrow. Your presence among us today is indeed a matter. Sir, Executive Director of Rajasthan Financial Corporation, our guest of honor, Shri Kailash Chanmina, he is retired DG, West Bengal, our manager, Reverend Sister Anirina, our principal, Reverend Sister Anupa Maria. May I request everyone to kindly greet them with a huge round of applause. Today,
we have gathered here to celebrate Hosla, the punch of courage, a theme that inspires us to rise, to fight, and to shine with unwavering strength. की प्रेरणा, स्वीकृति तथा सहायता के बिना कोई भी योजना ना तो बन सकती है और न ही क्रियान्वित हो सकती है। ईश्वर की कृपा एवं गुरु का आशीर्वाद व्यक्ति की स्वयं शक्ति और उसके प्रयासों को कई अधिक प्रभावशाली बना देती है। इसलिए प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए ईश्वर का स्मरण करते हैं। The sacred lamp symbolizes purity, wisdom, and the victory of light or darkness. To mark this auspicious beginning, we shall now proceed with the lighting of the lamp. So now, I wholeheartedly invite our honorable chief guest, Dr. Harsahai Meena, our guest of honor, Shri K.C. Meena, our manager, Reverend Sister Annie Reena, our principal, Reverend Sister Anupamaria, our staff secretary, Jyoti ma'am, program coordinator, Reverend Sister Irene, parent representative, Mr. Satyendra Sharma, our head girl, to lead us with lamp lighting ceremony. ज्योति जला with divine through the rhythm, as every gesture unfolds and every step whispers a sacred note. May this dance fill the air with peace, light and serenity. Ladies and gentlemen, join us in embracing this moment of peace, presenting fair dance by our talented senior section.
हमारी तू कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। Members of the staff and my beloved children, a very warm and joy-filled good evening to each one of you. It is with immense joy and gratitude that I welcome you all on this beautiful celebration, our school annual day. Today is a day of happiness as we come together to celebrate the talents, achievements, hard work, and the vibrant spirit that make our school a second home. It is my proud privilege to extend a warm and respectful welcome to our chief guest, Dr. Harsahai Meena, IAS, a distinguished civil officer known for his dedicated service, visionary leadership, and commitment to public welfare. Dr. Harsahai Meena presently holds the position of the Executive Director at Rajasthan Financial Corporation. As a senior RAS, he has earlier served with distinction as SDM at Lalsot and Nohar, Additional Commissioner Nagar Nigam, and various positions in different capacities. Sir, we are deeply honored to have you with us today. Your presence inspires our students to dream high and work with passion and integrity. We are grateful to you that you have accepted our invitation and blessed this occasion with your valuable presence. A warm welcome to you, dear sir. It is honor, Sri K.C. Meena, DGP retired, a highly respected officer known for his distinguished intelligence bureau, retired from the service as Director General of Police of West Bengal. Sir, we are privileged to have you with us today. Your remarkable achievements. We welcome our distinguished guest, Reverend Father Edward Oliveira, Vicar General of We welcome all the dignitaries, the youth leaders, the achievements, milestones, and growth over the past year. We appreciate our team's collective work, dedication, and commitment to excellence. A gracious welcome to our esteemed parents. Your trust, your support, and your partnership are the backbone of our school's progress. We deeply appreciate your support and are delighted to have you with us on this evening. This academic year, 2025-26, has been a journey of dedication and growth
and our students excelled not only in academics but also in sports, cultural activities, leadership and service. These achievements are the result of the untiring efforts of our teachers, the constant support of our parents, and the enthusiasm and energy of our children. I place on record my deep gratitude and appreciation to each one of you and extend my heartfelt welcome to the members of the staff, the well-wishers, and the students gathered here. We aim at holistic education, an education that shapes minds, forms character, and nurtures values. We continue to strive toward creating an environment where every child feels confident, cared for, and capable of dreaming big. Once again, I extend my heartfelt welcome to everyone present here. Let us celebrate with our children, rejoice in their talents, and cherish the spirit of togetherness. Thank you and have a wonderful evening. May God bless you. Precious words of welcome that have filled this gathering with warmth and goodwill. And now, as the echoes of that welcome linger in the air, let us give that emotion a melody, for mere words reaches their limit. Music takes over. A song has a power to touch when a speech cannot. It unites hearts, uplifts spirits, and sets the rhythm of joy. To carry forward this aura of celebration and gratitude, our gifted students are here to present the welcome song, an anthem of happiness, harmony, and heartfelt joy. So, let the note rise, let the rhythm flow, and let the melody wrap this warmth. Welcome our students for soul-stirring performance. Welcome to our annual day.
sir, whose journey reminds us that success belongs to those who dream, dare and do. Sir, words of wisdom. Welcome, sir. कई दिनों से इस एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं और स्वागत सभी मेहमानों का, सभी पेरेंट्स का। जैसे ही एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव की बात आती है, एक उत्साह, जोश, पूरे साल भर का लेखा जोखा सामने आ जाता है। एनुअल फंक्शन का मतलब पूरे पेरेंट्स भी अपने बच्चों की तैयारी में लग जाते हैं, स्कूल भी पूरी तैयारी में लग जाता है। बच्चे अपना अपना उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहते हैं। जिन बच्चों ने पूरे साल भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, एक्सीलेंट अवार्ड जीते हैं, उनको सम्मान करने का अवसर आता है। तो वाकई में एनुअल फंक्शन मतलब मस्ती, जॉय, इंजॉय, डांस, सॉन्ग्स, मस्ती। इस अवसर पर भाषण का इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, पर फिर भी हर संस्था का वार्षिक उत्सव किसी न किसी व्यक्ति को चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर या अन्य गेस्ट बुलाने के एक रिवाज है। उसी कड़ी में मेरे पास भी इस वार्षिक उत्सव में शामिल होने का अवसर मिला, निमंत्रण मिला, सैर स्वीकार किया, क्योंकि मेरे रास्ते का स्कूल है। मेरा गांव बिल्कुल पास में है, नायला के पास में, तो मेरा अपना स्कूल एक तरह से है। तो मैंने सैर स्वीकार किया और आज आप लोगों के बीच में चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर हूँ। साथियों, प्यारे बच्चों, प्रिय पेरेंट्स, आप सभी का इस वार्षिक उत्सव में मैं भी मेरी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और साथ ही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। बच्चों को एक भटकाव का दौर है, बच्चों को सही लाइन पर चलने का युग है, बच्चों को मोटिवेशन का युग है, नैतिक शिक्षा का विशेष रूप से ध्यान देने का युग है। सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, कॉन्वेंट स्कूल भी है और दूसरी CBSE की और राजस्थान बोर्ड की स्कूल्स है। हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा विद्यार्थी, हमारा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, वहाँ से अच्छे संस्कार ले और संस्कार लेकर जिस उम्मीद से हम हमारे बच्चों को विद्यालय में भेजा है, वहाँ से वो शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हर पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल भेजता है और आजकल एक प्रचलन है, चलन है कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। तो सभी विद्यार्थियों का इनकी ओर रुझान है। अब तो सरकारें भी प्राइमरी स्तर पर ही इंग्लिश मीडियम के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में खुल गई है। हमारे ज़माने में जब हम थे तो 6ठी क्लास में अंग्रेजी सीखते थे। तो हमारे बीच में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, ऑनरेबल KC मीना जी IPS से रिटायर्ड और DG वेस्ट बंगाल से रहे, बहुत सारी जगह उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। विशेष रूप से CBI में भी उनका काफ़ी कार्यकाल रहा है, वो हमारे बीच में, उनका स्वागत है। सिस्टर एनी रीना जो यहाँ की मैनेजर, आपने जिनको अभी थोड़ी देर पहले सुना है, सिस्टर मारिया जो कि प्रिंसिपल है, फादर डिसूजा जी, मेरे साथ में पधारे हुए गेस्ट और सभी पेरेंट्स, आप सबको इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों को स्कूल में भेजें। स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिलता है, उस पर ध्यान दें। टीचर्स, जब इनके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, उसमें आप अपने बच्चों की कमजोरी और जो उसका उत्कृष्टता है उसको पर ध्यान दें और विशेष रूप से घर में उसका विशेष ध्यान रखें कि विद्यार्थी बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरह के फ्रेंड सर्किल में रह रहा है, कहाँ उनकी संगति है, इसका बहुत ज़्यादा असर है। आप लोग रोजाना देखते हैं बहुत सारे बच्चे, कई बच्चों की फीस के कारण ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है जो स्कूल के लिए और पेरेंट्स के लिए भी दुखदायी होती है। बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर माता पिता का, पेरेंट्स का ध्यान नहीं मिल पाता है, इसलिए कई ऐसी स्थितियाँ आती है। तो आप लोग अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखें, सुबह से लेकर रात तक उनकी गतिविधि पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये वैज्ञानिक, डिजिटल, टेक्निकल और मोबाइल का युग है। इस मोबाइल के युग में
पता नहीं बच्चा कब कहाँ भटक जाता है। हालांकि ये विद्यार्थी छोटे हैं, पर फिर भी ये छोटे छोटे बच्चे आगे जाकर बड़े होंगे। तो अगर इनकी नींव आपके संस्कारों से, आपके ध्यान पर, आपके डिसिप्लिन से रहेगी तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी जीवन में जब भी विद्यार्थी आता है, हर पेरेंट्स चाहता है कि वो किसी प्रशासनिक सेवा में जाए, कि चेस्टी सेवा में जाए, पुलिस सेवा में जाए। और आप लोग इसी को सोच पर ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई सरकारी सेक्टर में, सरकारी नौकरी में जाए। साथियों, पेरेंट्स और पूरे बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि आप सब लोग, यह एरिया, इधर वाला एरिया ग्रामीण परिवेश सा ही है, कभी बहुत ज़्यादा कोई उस तरह का नहीं। यहाँ आसपास के सभी दूर दराज के गाँवों से आकर पेरेंट्स बसे हुए हैं। लोकल एरिया भी ग्रामीण एरिया है, तो सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से आगे बढ़ें। मैं नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यही टाइम है जब आप लोगों को तय करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, या आप कोई प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं। आपको तय यही करना है। तय करने के बाद जब आपका डिसिप्लिन, क्योंकि 10th के बाद में आप लोगों को 11th में सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो सब्जेक्ट्स उसी को ध्यान में रख कर लेना है। मेरा पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों पर थोपे नहीं कि साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। जो बच्चे की इच्छा है, सब में अवसर है, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है, आर्ट में भी है, सभी फैकल्टीज में सब तरह के अवसर है। तो बच्चे की जिसमें इंटरेस्ट है, आप उसी फैकल्टी में आप बच्चों का एडमिशन कराएं और उसी दिशा में उनका तो आपने करवा दिया, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखकर उसको आगे मोटिवेट करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों को सबसे पहले एक विजन, एक दिशा, एक टारगेट, एम तय करना है कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं उसको सपने देखें। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो सपने देखें कि मुझे बन गया, मैं बन रहा हूँ। मैं सोचे, विजुलाइज करें कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं IAS बन रहा हूँ, मैं IPS बन रहा हूँ। प्लान करें, प्लान के साथ उसकी तैयारी करें, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, पेशेंस रखें। और कम नंबर आए तो पेरेंट्स को ज़्यादा गंभीर नहीं हो, ये नंबर कोई काम नहीं आते हैं। मैंने 3rd डिवीज़न वालों की भी IAS देखा है, और 1st डिवीज़न मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल किसी सर्विस में नहीं है। इसलिए अपने बच्चों पर अनावश्यक रूप से परसेंटेज के लिए दबाव नहीं डालें। होता है कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि पूरे साल भर विद्यार्थी बच्चे ने पढ़ाई करी और संयोग से उस समय वो बीमार हो गया, या उसका कोई ऐसी स्थिति आ गई कि वो डिमोरलाइज हो गया, कॉन्फिडेंस लूज कर गया, तो पेपर में नंबर नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता है, केवल ये नंबर ही कसौटी नहीं है। नंबर बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। इसलिए मेरा स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें, डिसिप्लिन रखें, उसको टाइम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, पर अनावश्यक मार्क्स लाने के लिए दबाव नहीं डालें। क्योंकि ये दबाव जो होता है कि एक बच्चा बहुत आगे बढ़ गया, देखो उसको तो इतने परसेंटेज बन गई, उसके इतना हो गया, इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं डे टू डे, कोटा, सिक्का, जहाँ जहाँ कंपटीशन क्लासेज होती है, आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाए, पर बच्चे भी पूरी तरह से फ्री नहीं हो, उनको अपने लक्ष्य के प्रति पूरा गंभीर होकर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई ऐसी करनी है कि आप लोग जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य में आप निश्चित रूप से सफल हो। ये तभी होगा जब आप माता पिता और टीचर्स का गाइडेंस लेंगे और आप सतत कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे और ध्यान देंगे। मैं एक विद्यार्थी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा था, राजकीय स्कूल में पढ़ता था। वो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार जी के पास गया। 2 दिन तक तहसीलदार जी का चक्कर काटा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। उसने आकर पूछा किसी टीचर से कि सर ये तहसीलदार प्रमाण पत्र बनाता कौन है, तहसीलदार बनाता तो कैसे बनता है तहसीलदार, और उसके ऊपर कौन अधिकारी होता है। तो टीचर ने बताया कि ये तहसीलदार होता है, उसके ऊपर SDM होता है, फिर कलेक्टर होता है, तो सबसे ऊंची कलेक्टर बनता है। तो सर कैसे बनता है, बोला जब ये 6ठी 7वीं की पढ़ाई होती है आपकी, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें जो कोर्स होता है वही कोर्स आपके कलेक्टर बनने के काम आता है। चाहे NCERT का कोर्स हो, चाहे CBSE, इसका राजस्थान बोर्ड का कोर्स हो। सर कैसे बनते हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। कहते हैं कलेक्टर तो ऊपर से आता है, सब बन ही नहीं सकते। टीचर ने कहा नहीं बेटे, सब यहीं से बनते हैं। तो उस बच्चे ने सोचा कि मुझे भी ये तहसीलदार जो 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है, मैं
कभी इसके ऊपर अफसर बनूंगा। टीचर ने उसको गाइड किया। 7वीं 8वीं में उसने लक्ष्य कर लिया कि मुझे इस तहसीलदार के ऊपर का अधिकारी बनना है। तैयारी करी। माता पिता बिना पढ़े लिखे थे, कुछ जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। उनका तो एक ही लक्ष्य था कि वो नौकरी लगे बच्चा कैसे भी, चाहे टीचर बन जाए, चाहे बाबू बन जाए, चाहे रेलवे बन जाए, कहीं बन जाए। पर उस टीचर को उस विद्यार्थी की एबिलिटी का ध्यान था, ये कुछ बन सकता है। ये बात बता रहा हूँ उस विद्यार्थी की 7th 8th की। तय कर लिया कि मुझे इस तहसीलदार से उच्च अधिकारी बनना है। गाइड किया। 10वीं क्लास में वो टाइम था, उस समय लगभग 60 दिन तक 60 डेज सरकारी स्कूल में टीचर्स की स्ट्राइक रही। एग्जाम जो बोर्ड के एग्जाम होता है उससे 1 महीने पहले तक मैथ्स का टीचर नहीं, इंग्लिश का टीचर नहीं। पास होना ही मुश्किल होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। इंग्लिश और मैथ के नाम से तो वैसे ही जान निकल जाती है कि क्या होती है। हिंदी तो पढ़ के फिर भी निकल सकता है। पढ़ाई करी। टीचर जो था, एक टीचर, 2 टीचर बचे हुए थे क्योंकि वो प्रोबेशन में थे, वो स्ट्राइक पर जा नहीं सकते थे कि सर कैसे, अब तो पास ही नहीं होंगे यहाँ पर। टीचर ने कहा कि बिल्कुल आप तो अपने हिसाब से पढ़ाई करो, किताबों से पढ़ाई करो। टीचर ने पूछा कि मुझे लगता है कि कोई भी इस विद्यालय से इस बार फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं, इंग्लिश टीचर नहीं है, मैथ टीचर नहीं है। उस स्टूडेंट का नहीं सर मैं फर्स्ट डिवीज़न आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे नंबरों से पास होगा। बोर्ड की एग्ज़ाम हुई। एग्ज़ाम में वो बच्चा पूरी स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न आया और मेरिट में आने से, राजस्थान बोर्ड में मेरिट में आने से केवल ओनली 7 नंबर्स उन परिस्थितियों में आगे बढ़ा। आसपास ग्रामीण क्षेत्र के आसपास में टीचर से सबने कहा कि भाई तू तो 11वीं करके 12वीं करके टीचर बन जा। पर उसके मन में तो एक ही लक्ष्य था कि मुझे तो तहसीलदार से ऊपर का अधिकारी बनना है। तय कर लिया कि कैसे टीचर बन गए तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन तो होगी नहीं। STC करके आप टीचर बन जाओ। टीचर बनने से कोई फायदा होगा नहीं, जो लक्ष्य था वो पूरा होगा नहीं। पर घर वालों का दबाव था। फार्म भरा, टीचर में सिलेक्शन हो गया, बाबू में सिलेक्शन हो गया, रेलवे में सिलेक्शन हो गया, स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो गया, SSC में सिलेक्शन हो गया। जो भी एग्जाम उस विद्यार्थी ने दी, पहले चांस उस विद्यार्थी का हर जगह सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि उसने तय कर रखा था। दबाव डाला गया। मैथमेटिक्स ली। मैथमेटिक्स के बाद विद्यार्थी ने कहा कि मुझे तो IAS बनना, RAS बनना, मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं है। बीच में छोड़ दी फैकल्टी। फिर आया और तैयारी करी। ग्रेजुएशन किया। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। जब ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय पहला चांस IAS का दिया। प्री हुआ, मेंस हुआ और इंटरव्यू तक गया पहले चांस में। उसी समय RAS दिया और पहले चांस में वो RAS बना। वो विद्यार्थी कोई और नहीं है, वो विद्यार्थी मैं हूँ। तो आप तय करते हैं, आप लक्ष्य बनाते हैं, आप एम निर्धारित करते हैं 7th क्लास में उस स्कूल में जहाँ पर 3 टीचर थे। 8वीं तक के स्कूल में कोई नहीं था। 6वीं में ABCD पढ़ना सीखा था। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अनावश्यक दबाव की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी जो बनना चाहता है, वो आर्ट्स में जाना चाहता है, वो कॉमर्स में जाना चाहता है, वो साइंस में जाना चाहता है, ये उसकी इच्छा से तय करवाए। सब जगह मौके हैं, सब जगह अवसर है। तो आप लोग उसका लक्ष्य तय कराएं। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करने के बाद में उसके सपने देखें कि मैं IAS बनूंगा, मैं IAS बनूंगा, मैं RAS बनूंगा। और विजुअलाइज करें। सपने देखे जरूर, बस सपनों को पूरा करने के लिए सोए नहीं। अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति ने कहा था कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो इसलिए सोए नहीं, सपने ले ले। नींदों में सपने नहीं लेने, जागते हुए सपने लेने हैं। सपने ले, मेहनत करें, हार्ड वर्किंग करें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। कोई बात नहीं, एक बार असफल हो जाता कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमारे साथ में एक ऐसा व्यक्ति RAS बना था जो 17 साल पटवारी रहा था। तो कोई बनने की कोई उम्र नहीं होती एक बार बनने के बाद में। तो इसलिए बच्चे, विद्यार्थियों, आप लोग लक्ष्य तय करके पूरी शिद्दत से लग जाए। चाहे स्कूल में नंबर प्राप्त करने हैं 10वीं में, चाहे किसी खेल में पार्टिसिपेट करना है, चाहे संगीत में, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है,
उस इंटरेस्ट के अनुसार आप आगे बढ़े। पेरेंट्स को क्लियर कट बताएं कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स से आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, जो भी आपका क्षेत्र है उसमें आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बने, पर सब नहीं बन सकते हैं। इसलिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं। कई बार पेरेंट्स जिद कर लेते हैं, टीचर्स को बताएं। टीचर्स आसानी से पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि विद्यार्थी की इच्छा यह है, आप इसको इधर डालें तो यहाँ भी स्कोप है। तो इसलिए आप लोग लक्ष्य तय करके पढ़ाई करें और कंटिन्यूसली करें। ऐसा नहीं एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन पढ़े ही नहीं, 4 दिन मस्ती करी, उससे नहीं चलने वाला। आप रेगुलर चाहे 2 घंटे पढ़े, चाहे 3 घंटे पढ़े, चाहे 4 घंटे पढ़े। मैं कहता हूँ 6-7 घंटे बहुत होते हैं। घर से स्कूल से जाने के बाद में, स्कूल का अलग है, वहाँ जाने के बाद में इतना पढ़ेंगे। और जो 6, 7, 8, 9, 10 मैं RAS IAS की तो बता देता हूँ, चाहे NCERT की बुक्स हो, चाहे राजस्थान बोर्ड की, आपके यहाँ से NCERT की बुक्स ही है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये किताबें आपने पढ़ ली तो जब आप ग्रेजुएशन करेंगे उसके पहले चांस में आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए साथियों, आप लोग इस अवसर पर, जो आज मस्ती का अवसर है, भाषण कोई नहीं सुनना चाहता, भी बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस है, टाइम भी नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए आप लोग अपने अभिभावकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिस उद्देश्य से आपको स्कूल में भेजा है वहाँ पर आप लोग आए, पढ़ाई करें, लक्ष्य निर्धारित करें, कंटिन्यूसली पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, विजुलाइज करें और धैर्य, डिसिप्लिन रखते हुए आप पढ़ाई करें। क्योंकि ये विद्या का भंडार ही ऐसा है कि इस भंडार में जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा और जितना आप कम खर्च करोगे उतना ही कम होगा। इसलिए तो कहा गया है, विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, विद्या के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो घटे, बिन खर्चे घट जात। अब इसको जितना बांटोगे, चाहे अपने स्टूडेंट्स में बांटो, अपने साथियों में बांटो, आपको आता है जो दूसरों को बताओ। आजकल विद्यार्थी बताते नहीं है, वो सोचते हैं कि इसको बता दूंगा तो इसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको, जिसमें आपके एक्सपर्टीज है, वो दूसरा ले ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप, जो आप आता है, जिस दोस्तों को नहीं आता उनको बताओ, तो आपकी और एक्सपर्टीज होगी। और इतनी मेहनत करो कि मेरे जैसे, कि मैं किसी एग्जाम में सेकंड चांस नहीं लिया। लक्ष्य तय किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में या कहीं प्रोफेसर बनूंगा या IAS बनूंगा या RAS बनूंगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले चांस में मेरा लेक्चरशिप में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS बना और अब आपके बीच में IAS हुआ। तो इसलिए तय करने पर सब चीज़ें संभव है। उसके लिए केवल ज़रूरत है मेहनत करने की, हार्ड वर्किंग करने की और पढ़ाई करने के साथ साथ आप लोग कुछ ऐसी हॉबीज पालें जो थोड़ा टाइम आप, क्योंकि पूरे दिन नहीं पढ़ा जा सकता, पूरे टाइम नहीं पढ़ा जा सकता। तो घर की बागवानी है, माता पिता के जो घर का काम उसमें हेल्प करना है, कोई ऐसी चीज़ें बांटें जिससे आप लोग आराम से, आप थोड़ा खेलने कूदने का सारी चीज़ें हो, तो पूरे दिन पढ़ा भी नहीं जाता। तो आप उसको, आपके समय को इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर रजा से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। क्या बनना चाहता है? भगवान पूछे क्या बनना चाहता है, सब बनाएगा वो जो आप चाहोगे। मेहनत ही आपकी इतनी होगी तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। पर ज़रूरत है हार्ड वर्किंग की, डिसिप्लिन की, मोरल एजुकेशन की, माता पिता के संस्कारों की, माता पिता के जो टीचर्स के संस्कारों की, उनकी एडवाइस की, ये सब चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया, गेस्ट ऑफ ऑनर दिया, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। We have arrived at the most awaited program. Announce your name, dear students. Please walk proudly towards the stage. This is the moment that reflects the excellence you have earned. Securing the first position in class 10. Please come on the stage. Moving on, clinching the second position in class 10. Jaideep Singh with a remarkable score of 96%. We request you to come forward and receive your award. The third
subject topper of class 10 has proved that consistency and patience lead to success. He is none other than Harshit Khandelwal with 95%. Heartiest congratulations, dear. Please join us on the stage. Now, we move to another proud moment of today's ceremony, the felicitation of our class 10 subject toppers. These students have shown exceptional mastery in their favorite subjects. Please join us on the stage. Moving ahead with social science. And the topper is Harshit Khandelwal with 99 marks. Please come up on stage. Scoring the highest marks and proving that words truly have power. The English toppers are Lavnish Kumar Rathi, Suhana and Sparsh Khandelwal with a brilliant score of 96 marks. Well done. Please come up on stage. And now, Thank you, sir. You have truly added grace and significance to our annual day.